Hello all, welcome to the video lecture series of integrated circuits, and this is lecture number 1. We will start with the second unit, that is the linear application of op-amp, and the prerequisite for this subject is analog circuits, which you have already studied in the second year. Now the linear application of IC op-amp is mapped with the course outcome 2. That is why I have written here CO2, which we have already discussed in our previous lectures. Now, what is the objective of the topic we are studying today? So first of all, topic kya hai? Topic is the history of integrated circuit. And the objective of this topic is to understand the historical aspects of the 741 IC op-amp, right? And what will be the outcome of this topic? Outcome means after this session, after this video lecture, what you will be able to learn, what you will be able to explain. So after this session, you will be able to explain the historical perspective of integrated circuit. You will be able to explain the issues in the digital IC design, and you will be able to explain the quality design matrix of a digital design. All right. So let us start with the introduction part of the integrated circuit. So first of all, what is an integrated circuit? एक integrated circuit क्या है? You all, everybody know what is a circuit? Number of components when connected with supplies, resistance, capacitance, and everything, that becomes a circuit. Then what do you mean by integrated? Integrated means when different components are placed on a single platform, that circuit is known as your integrated circuit. So यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमने एक IC शो की है. So ये IC क्या है? ये एक integrated circuit होता है. IC चिप होती है जिसमें आप different number of components को आप integrate करते हो, right? Manufacture करते हो सारे components को एक ही चिप पर. So that circuit is your known as integrated circuit. So right, so this is your IC and this is the internal part of your IC, you can see here, right? So and but the question is, what is the need of integrated circuit? What is the need of integrated circuit? Why do we need such circuits? Basically we can see here when we will see the evolution of the ICs, in that part we will see what is the need of integrated circuit. So I have shown here different type of integrated circuit IC packages. So आप देख सकते हो कि कैसे कैसे ICs आपके पास हैं मार्केट में, किस टाइप की ICs आपने देखी हैं अभी तक, maybe in the EDC lab or in the analog circuits lab, right? So I think 741 IC आप सब लोगों ने already देखी होगी EDC lab में while doing the practicals, right? So now let us see the evolution part of the logic complexity in the IC. So we can see before IC, जब integrated circuit market में नहीं आया था, उससे पहले we had transistor. हमारे पास transistor था in the year of 1947, right? So आप जब circuit में use करते थे तो आप single transistor implement करते थे, single transistor लगाते थे. Then after the BJTs हमारे पास discrete component market में आ गए, which is FET and diodes, इस type के circuits हमारे पास market में आ गए. बट तब भी प्रॉब्लम क्या रहती थी? तब भी प्रॉब्लम ये रहती थी कि आपको एक सिंगल सर्किट डिजाइन करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स को यूज करना पड़ता था, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को आप यूज करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, आपका जो सिस्टम का साइज था वो इंक्रीज हो जाता था. बहुत ह्यूज साइज के आपके सिस्टम्स हुआ करते थे. दैट इज व्हाई जब टेक्नोलॉजी की इन्हांसमेंट हुई, सो हमारे पास डिफरेंट स्केल ऑफ इंटीग्रेशन आनी शुरू हुई. लाइक इन 1961 हमारे पास स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हुई. अब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन मींस जहां पर आपने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को एक सिंगल चिप पे इंटीग्रेट करना या एक चिप पर आपने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया. तो जब से पहले जो हमारे पास इंटीग्रेशन आई थी, उसमें सिर्फ 10 ट्रांजिस्टर्स ही आप एक सिंगल चिप पर पेस्ट कर सकते थे. ठीक है, एक ही चिप पर आप 10 ही ट्रांजिस्टर सिर्फ इंप्लीमेंट कर सकते थे. बट जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इनहैंस हुई, 1967 में आती हमारे पास जो इंटीग्रेशन स्केल है वो इंक्रीज होके मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हुआ, और उस स्केल में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स की इंटीग्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई. सो यू कैन सी जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो थे वो 100 हो गए. 100 से लेके 1000 ट्रांजिस्टर्स आप इंटीग्रेट कर सकते थे इन दिस year 1967 to 1971. Then we have large scale integration in 1972. जब large scale integration आया तो number of components और increase हो गए. That means chip का size reduce हो गया और number of components आपने ज़्यादा उस पे implement करने शुरू कर दिए.
right? Then we have very large scale integration, and then we have ultra large integration. Similarly, we have giga scale integration. So till now, अभी हम जिस integration level पे काम कर रहे हैं, that is my giga scale integration. और आप इस PPT में ये चीज clearly देख सकते हैं कि जैसे जैसे integration level increase हो रहा है, integration level के increase होने से number of transistors की जो integration है वो भी increase होती जा रही है. इसका एडवांटेज क्या है कि आप बड़े से बड़े सर्किट को भी छोटी सी छोटी आईसी की हेल्प से डिजाइन कर सकते हो. अब आप खुद सोचिए, अगर आप VLSI का एग्जांपल लेते हैं, VLSI में 20,000 ट्रांजिस्टर एक सिंगल आईसी अगर कंटेन करती है, तो दैट मींस आपको 20,000 ट्रांजिस्टर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक आईसी से आपका काम चल रहा है, राइट? सो डायरेक्टली आपका जो सर्किट का साइज है वो रिड्यूस हो गया. All right, so this is the advantage of integrated circuit. That is why integrated circuit is must, right? So ये सारी requirements है integrated circuit की market में क्यों आया integrated circuit. All right, okay. Then transistor revolution में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास transistor आया था 1947 में, which we have already discussed. Then उसके बाद हमारे पास Shockley ने 1949 में BJT invent किया. देन हमारे पास जो फर्स्ट मोनोलिथिक आईसी आई वो 1958 में आई बाय जैक किल्बी. एंड फर्स्ट कमर्शियल आईसी जो आई हमारे पास मार्केट में, दैट वाज इन 1960 बाय फेयरचाइल्ड, राइट? सो फर्स्ट कमर्शियल आईसी जो हमारे पास आई थी वो फेयरचाइल्ड की आई थी 1960 में, एंड दैट वाज माय 741 आईसी. सो इसीलिए मैंने यहाँ पर 741 आईसी को लिया है. सो यू कैन सी मैंने डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर. आई हैव डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स लाइक फेयरचाइल्ड, then I have National Semiconductors, Motorola, RCA, Texas Instruments, Signetics with their IC number same है सबका, लेकिन represent करने का तरीका सबका different है, right? So these are the different manufacturers जिन्होंने उस time पे first IC को invent किया था, right? So देन जब इन्वेंशन हुई तो ऑब्वियसली कोई भी इन्वेंशन के साथ साथ हमारे पास डिजाइन चैलेंजेस आते हैं कि क्या क्या डिजाइन चैलेंजेस रहे होंगे जब हमने आईसी को डिजाइन किया, या क्या इश्यूज आते हैं ड्यूरिंग द डिजाइनिंग पार्ट. सो जो इश्यूज आते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक इश्यूज एज वेल एज दे आर मैक्रोस्कोपिक इश्यूज. अब माइक्रोस्कोपिक इश्यूज में क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट वन इज फंक्शनैलिटी, कि जो आईसी आप डिजाइन कर रहे हो उसका फंक्शन क्या है, किस लिए आप डिजाइन कर रहे हो, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट आईसी. का फंक्शन पहले से डिफाइन होना चाहिए. उसकी कॉस्ट कितनी रखनी है, कॉस्ट डिफाइन होनी चाहिए कि कॉस्ट कितनी हो कि रिलायबल हो, इजीली चीप हो, राइट? देन रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस, मतलब ऐसा ना हो, रोबस्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने आईसी को यूज किया एंड वन टाइम यूज में टेम्परेचर जरा सा चेंज होने में वो डिस्ट्रॉय हो गई. सो इट शुड बी रिलायबल. आपका जो आउटपुट आएगा आईसी को यूज करके वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है? देन परफॉर्मेंस आईसी की अच्छी होनी चाहिए. तो ये सारे इश्यूज जो होते हैं दे कम्स अंडर माइक्रोस्कोपिक इश्यूज. देन अगेन वी हैव मैक्रोस्कोपिक इश्यूज में क्या क्या आता है? टाइम टू मार्केट, मींस जब आप डिजाइन करना किसी आईसी को शुरू करते हो तो एक किस टाइम तक वो मार्केट में आ जाना चाहिए, दैट इज आल्सो द इशू. देन डिजाइन में कितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन होना चाहिए, कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, दैट इज आल्सो एन इशू. Then we have higher levels of abstraction. Level of abstraction ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा abstraction level होगा उतना ज्यादा reliable होगा, right? So और हमारा सबसे मेजर इशू जो होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हमारे कम से कम होने चाहिए, ठीक है? सो ये हमारे मेजर इश्यूज होते हैं. सो यही मैंने डिजाइन मैट्रिक्स में आपको एक्सप्लेन किया है कि डिजाइन मैट्रिक्स के टाइम पे जब हम डिजाइनिंग करते हैं आईसी की तो ध्यान में क्या क्या रखा जाता है. तो माइंड में हम ध्यान रखते हो फंक्शनैलिटी की, फंक्शन क्या है इस आईसी का जो हम डिजाइन कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है, ठीक है? तो कॉस्ट डिपेंड करती है आपकी एनआरई कॉस्ट पर और आरई कॉस्ट पर. एनआरई कॉस्ट आपकी बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो आपकी डिजाइनिंग पार्ट की होती है, क्योंकि जब आप आईसी की डिजाइन करते हो तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आप डिजाइन करते हो. देन वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसके अंदर आता है कि आपने उस आईसी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आपने इंटीग्रेट की हैं, उन सब के पार्ट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं जो आपने असेंबली की, जो टेस्टिंग किया, टेस्टिंग में आपका कितना खर्चा हुआ. सो दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट. तो ठीक है, इस सब में आपका कॉस्ट आता है. देन रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस आपका किस पे डिपेंड करता है? रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस आपका डिपेंड करता है कि नॉइज मार्जिन और नॉइज इम्यूनिटी कितनी है, कि आईसी का कितने नॉइज लेवल को वो टॉलरेट कर सकता है, कितना वो नॉइज से इम्यून है. इस लेवल को स्टडी करके ही आप ये स्टडी कर सकते हो कि वेदर योर आईसी इज रोबस्ट और इट इज रिलायबल और नॉट, राइट?
Then the last point of design matrix is performance. Performance के बेस पर आप स्टडी कर सकते हो कि परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी आपको कि आईसी की स्पीड कितनी है. स्पीड कैसे पता चलती है? डिले आपको पता चलेगा कि कितने डिले में जब आपने आईसी में इनपुट दिया तो कितने डिले में आपको आउटपुट रिसीव हुआ. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट आईसी? पावर कितना कंज्यूम करिए, कितनी एनर्जी कंज्यूम करिए, दैट एवरीथिंग शोज द परफॉर्मेंस ऑफ दैट आईसी. सो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपके किस में डिजाइन किए जाते हैं? दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द क्वालिटी डिजाइन मैट्रिक्स, राइट, ऑफ आईसी. Right, so this is all about the historical aspects of 741 IC. Thank you so much. In the next lecture we'll see another topic from linear applications of op amp. Thank you.